प्रभासं ऋतुविपरीयप्रतासं प्रतासं आकाशस्थिति महिमा बताए हस्तकला को दिखाए सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही है बता जय जयकार करे जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार सब संकट से सब कष्ट से हो जाएगा पार ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ जय जयकार करे ओ हालेलुया धन्यवाद प्रभु करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ पवित्र
Jesus. ओ तेरा नाम पवित्र है प्रभु, तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ है प्रभु. Oh hallelujah Lord, we worship your name O Lord. There is none like you O Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. Thank you Lord Jesus for everything O Lord. Oh hallelujah प्रभु, तू अल्फा है प्रभु, तू ओमेगा है प्रभु. Oh धन्यवाद प्रभु. तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु. Oh hallelujah. Thank you Lord Jesus. तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तू महान है प्रभु, तू योग्य है प्रभु. Let us prepare for the Lord's table. 1 Corinthians 11 verses 24 and 25. Verse 24. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body broken for you. This do in remembrance of me. Likewise, in verse 25, after he took the cup, when he had supped, saying, The cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye think of it in remembrance of me. Let us pray. Lord Jesus, I ask you to forgive each one present here for the sins committed last week. Lord, as we examine ourselves and recollect, we ask ourselves, did you pray regularly? Did you speak of Jesus at least to one person last week? Did you spend time in the presence of the Lord? Did you obey and respect your parents, grandparents, near and dear ones? Did you gossip rather than preach the gospel? Did you hurt anyone in the body of Christ, brothers, sisters? Jesus, we pray that we will not repeat this again. Forgive us for our sins of disobedience, misunderstanding, rebellion, and all our habitual sins. Make us worthy to approach the Lord's table without any blemish, without any wrinkle. Lord, we promise you that we will not repeat our habitual sins, believing the promise in Isaiah 18 verse 1. Though your sins are scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Lord, for saving us from the fires of hell. Amen and amen. Praise the Lord. Let us come before God with our offering, our tithes, our seed, our hearts open. Let us surrender everything to God. Proverbs 11:17 says, A kind man benefits himself, but the cruel person brings trouble on himself. Clearly, God wants us free from the love of money and possessions. Most of us don't struggle to understand Jesus' teachings, but we wrestle with our flesh to obey it because of fear. When we let go of money and possessions, we fear we are letting go of our security. Fear is what gives the devil access into our lives and begin attacking us. We must make sure that as believers, everything we do is based
on faith in God and His Word. There are benefits of giving. Giving always results in receiving. The Bible says, "Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. With the same measure that you give, it shall be measured back to you." The second benefit is God will bless whatever you put your hand to. Give generously to Him and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. That's in Deuteronomy 15:10. The third blessing of giving is every time you give, you're declaring something. You're declaring that you're blessed. You're declaring that you're righteous. You're declaring that you're obedient to the gospel of Jesus Christ. You're declaring that you love God. You're declaring that you trust God. Another benefit is God will increase you so that you can keep being generous. And the fifth benefit is that you will receive a reward for your giving. So God, we come before you, we bring our tithes, we bring our offering, we bring our seed, we also bring our heart, we also bring our bodies as a living sacrifice before you, Lord. And we put ourselves, Lord, before you on the altar, Lord, so that you would bless us. We give to you, Master. We give into your storehouse. We give into your kingdom, Lord, and cheerfully, not grudgingly, not stingily, but we give cheerfully, so that your blessings, Lord, would come upon your people, Lord. Father, and we thank you, Father. Receive our gifts, we pray, Lord. And you know our hearts. You know, Lord, everything that we go through, Lord. We know, Father, you will bless your people, those who give, Lord, into your kingdom. Today I speak a blessing upon each one of them. I speak your goodness. I speak your favor. I speak your provision. I speak your protection. And I speak your all that comes from you. Let it be done unto those who have given, Lord. Father, we give you glory. We give you all honor. And we give you all praise. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रभु की स्तुति It's good to meet you this day. आज के दिन फिर से आपसे जुड़ने के लिए हम खुश हैं Once again in online, we believe that God is continuing to bless His people. फिर एक बार ऑनलाइन के द्वारा हम अपेक्षा रख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आज भी आशीषित करेंगे We'll ask God to anoint His word. हम प्रभु से मांगेंगे कि आज का वचन पर वो अपना अभिषेक भेजे And Father God, we submit our lives to you और प्रभु हम अपना जीवन आपके हवाले करते हैं प्रभु as we hear your word. जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं May we get understanding from it, Lord. उस वचन की समझ हम सबको मिले प्रभु We open our hearts हम अपने हृदय खोलते हैं to receive your holy, powerful word, आपका सामर्थ्य शब्द को स्वीकार करने के so लिए that our minds would be renewed, ताकि हमारा मन नया हो जाए our hearts would be transformed, हमारा हृदय बदल जाए and we may have the joy of continuously serving you. और हमेशा आपकी सेवा करने का आनंद हमें मिले May you be given glory, honor, and praise, Lord. और आपको सारी स्तुति महिमा आदर मिले प्रभु In Jesus' name, यीशु के नाम से greetings to you in the name of matchless name of our Lord Jesus Christ. यीशु के नाम से फिर से आपका स्वागत है I want to take you to a small passage before introducing to you the word this Sunday. आज के वचन में जाने से पहले एक और छोटे से वचन को हम देखेंगे फिर शुरू करेंगे If you see the Song of Solomon, सुलेमान के गीत में से ये है this is a dialogue, a conversation between
the Shulamite woman and the beloved. यहाँ पर हम देखते हैं शुलमाइट की स्त्री और जो प्रिय है उन दोनों के बीच का ये जो बातचीत के बारे में है। I'm laying a foundation for this whole word today. ये वचन हम इसलिए जो पढ़ रहे हैं ताकि आज के शब्द का वो नींव हो जाए जिससे हम आज के शब्द को और अच्छी रीति से समझ पाए। So in the Song of Songs, chapter 1, verse 2, तो सुलेमान के गीत पहला अध्याय और दूसरा वचन हम देख रहे हैं। the Shulamite woman is saying, "Let him kiss me with the kisses of his mouth." शुलमाइट स्त्री ये कह रही है कि वह अपने मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे, For your love is better than wine. क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। Because of the fragrance of your good ointments, your name is ointment poured forth. Therefore the virgins love you. Hallelujah. तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती है। She is showing a desire so that she would receive the kiss from the beloved. यहाँ पर ये स्त्री जो है इच्छा दिखा रही है, व्यक्तित्व कर रही है कि वो अपने प्रिय से चुम्बन को पाए। And the love is better than wine. That means better than anything of the world. Your love is better. और वो कह रही है यहाँ पर कि आपका प्रेम तो दाख मधु से भी ज्यादा अच्छा है। मतलब वो अपने जो है जो फीलिंग्स को बता रही है प्रभु को कि आपका प्यार के सामने और कुछ भी नहीं है प्रभु। Let us go to the another verse. एक और वचन में जाएंगे अभी। We see in the first verse how the Shulamite woman wants the kiss from the beloved. हमने पहले वचन में देखा कि कैसे स्त्री अपने प्रिय से चुम्बन चाहती है। But in Psalm 2 verse 12 it says, "Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all those who put their trust in him." यहाँ पर भजन संहिता दूसरा अध्याय और 11वें वचन में एक और बात लिखी है, उसे अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो न जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। So in our faith we need to come to the kiss our Lord and King Jesus. मतलब कि हमारे विश्वास में हमें ऐसे स्थान पर आना है जहाँ पर हम अपने प्रभु को प्रेम से चूम सके, उसके करीब आ सके। The Bible says that God delights in his people. जैसे वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने लोगों से जो है आनंद रखता है। And kiss is directly in accordance to putting our trust in him. और चूमने का मतलब है कि हम इतना विश्वास उस पर रखते हैं। You just don't go and kiss anyone. You go and kiss the person you love. तुम ऐसे ही किसी को जाकर चूमते नहीं हो। अगर तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो उसे चूमते हो। The one you honor, the one you put in worship, in full esteem. या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका तुम बहुत आदर करते हो या उसका मूल्य आपके जीवन के लिए बहुत है, तो ऐसे प्रिय लोगों को ही आप चूमते हो। So in Songs of Solomon we receive the kiss. तो ये हम देखते हैं सुलेमान के जो वचन में हमने जो पढ़ा, जो पहला वचन हमने पढ़ा, हम जो है चुम्बन को पाते हैं। And here we need to kiss in Psalm 2. और यहाँ भजन संहिता में लिखा गया है कि हमें भी चूमना जरूरी है। So love is a two-way thing. तो हम देखते हैं कि जो प्यार है दोनों तरफा होना चाहिए। You cannot clap with one hand, you need two hands to clap. जैसे कि ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत है, उसी प्रकार। So we go to our actual scripture today is 2 Samuel 19:31 onwards. तो फिर अब हम जाएंगे आज के वचन में 2 शमूएल की पुस्तक 19वां वचन। I will read and
Barzillai, the Gileadite, came down from Rogelim and went across the Jordan with the king to escort him across the Jordan. 2 शामुएल की पुस्तक 19 अध्याय 31 वचन से हम जो पढ़ रहे हैं इस समय 31वां वचन। Now Barzillai was a very aged man, 80 years old, and he had provided the king with supplies while he stayed at Mahanaim, for he was a very rich man. तब गोलादी बर्जिलै रोगलिम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बर्जिलै तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था, जब तक राजा महनैम में रहता था तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। And the king said to Barzillai, "Come across with me and I will provide for you while you are with me in Jerusalem." तब राजा ने बर्जिलै से कहा, तू मेरे साथ उस पार आ जा और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा मेरे साथ यरूशलेम में। But Barzillai said to the king, "How long have I to live that I should go up with the king to Jerusalem?" लेकिन बर्जिलै ने राजा से कहा कि मैं और कितनी देर जीवित रहूंगा कि मैं राजा के साथ यरूशलेम तक आ जाऊं। I am today 80 years old. Can I discern between the good and bad? Can your servant taste what I eat or what I drink? Can I hear any longer the voice of singing men and singing women? Why then should your servant be a further burden to my lord the king? आगे वो कहता है राजा को कि मैं अब 80 साल का हो गया हूँ और अच्छे बुरे के बीच का फर्क मैं ज्यादा जान नहीं पाता हूँ। क्या आपका ये दास चक्कर कह सकता है कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, और मैं क्या गाते हुए पुरुष और स्त्रियों की आवाज को सुन सकता हूँ? तो फिर मैं आपके साथ आकर आपके ऊपर बोझ क्यों बनूं, मेरे प्रभु, मेरे राजा? Your servant will go a little way across the Jordan with the king, and why should the king repay me with such a reward? आपका ये दास यरदन के उस पार तक जाएगा राजा के साथ, लेकिन उससे आगे मैं जाकर आपको तकलीफ क्यों दूं? Please let your servant turn back again, that I may die in my own city near the grave of my father and my mother. But here is your servant Chimham. Let him cross over with my lord the king and do for him what seems good to you. मेरे राजा मेरे प्रति बहुत ही दयालु है, लेकिन ये आपका दास वापस चला जाए इसकी अनुमति दो, ताकि मैं अपने शहर में अपने माता पिता के साथ ही गाड़ा जाऊं। लेकिन मेरा ये दास चिम्हम जो है वो आपके साथ चला जाएगा, मेरे राजा, मेरे प्रभु, और जो भी आप चाहते हो वो आपके नजर में उसके साथ करना। And the king answered, Chimham shall cross over with me, and I will do for him what seems good to you. Now, whatever you request of me, I will do for you. राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, चिम्हम मेरे साथ आ सकता है और जो भी तुमने कहा है कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, वही मैं करूंगा। Then all the people went over the Jordan, and when the king had crossed over, the king kissed Barzillai and blessed him, and he returned to his own place. यरदन नदी को पार करने के बाद राजा के साथ फिर राजा ने बर्जिलाई को चूमकर उसके लिए प्रार्थना किया और फिर वह वापस चला गया अपने घर। Today's message is the kiss from the king. आज का ये शीर्षक है राजा का चुंबन। Now, who was Barzillai? अब ये जो बर्जिलाई जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये बर्जिलाई व्यक्ति कौन है? We must understand the whole history that's behind the story. ये बर्जिलाई के बारे में उसका इतिहास अब हम जानेंगे थोड़ा सा। It was in 2 Samuel chapter 17. 2 शामुएल की पुस्तक 17वां अध्याय में इसके बारे में जिक्र है That when David had problems with Absalom and David went away from there. कि जब दाऊद
को जो समस्या थी एब्सलम के साथ और जिसकी वजह से वो वहां से चला गया, And David and his men had come to a place called Mahanaim. और दाऊद अपने लोगों के साथ महनैम के जगह पर पहुंचा। That this person, Barzillai, who is a Gileadite, ये व्यक्ति बर्जिलाई जो गिलेद से है, he brought beds and basins and earthly vessels. उसने जो बिस्तर और सारे जो पदार्थ खाने की चीजें, ये सारी चीजों का उपलब्ध दाऊद के लिए किया था। He brought wheat and barley, flour, beans, lentils, honey, curds, sheep, and all these things, requirements, food requirements, he brought it. तो हम देखते हैं कि जब दाऊद जो है अब्सलम से जो है दूर था, जो भाग रहा था निर्जन प्रदेश में, तो वहां पर ये बारजिलाई व्यक्ति था जिसने दाऊद और उसके सैनिकों की मदद की और वो सारी चीजें जिनकी उनको जरूरत थी, जैसे खाने पीने का जो पकाने के औजार, जो बिस्तर सोने के लिए, सारे उपलब्धि इस बारजिलाई ने उपलब्ध किया था दाऊद के लिए। For he heard them say that the people are hungry and weary and thirsty in the wilderness. क्योंकि बारजिलाई के सुनने में आया था कि दाऊद जो भाग रहा है अब्सलम से, अब वो निर्जन प्रदेश में है, अब उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, वो थके हैं, प्यासे हैं, और उनकी जो मदद करने के लिए उसने सारी चीजों की उपलब्धि दी दाऊद और उसके सैनिकों के लिए निर्जन प्रदेश में। Now as Absalom is dead and David is back, तो अब क्योंकि अब्सलम की मृत्यु हो गई है और अब दाऊद उसके बाद जब सिंहासन पर आया, ये उसके बाद की कहानी है। David is remembering all those who showed kindness to him. मतलब कि दाऊद सिंहासन पर आने के बाद वो सभी लोगों को याद करता है जिन्होंने उनको मुश्किल दिनों में जो मदद की थी, एक एक करके उनको जो है वो बुलाकर धन्यवाद दे रहा है। David want to be grateful. क्योंकि वो हृदय से जो है अपना आभार प्रकट कर रहा है दूसरों के सामने। In a world where there are so many ungrateful people, we need to be grateful और to those who helped us. ऐसी दुनिया में जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आभार प्रकट नहीं करते हैं जब आप उनके साथ अच्छा करते हैं, और इसीलिए जब कोई अच्छा करता है तुम्हारे लिए तो उनके लिए आदर प्रकट करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Sometimes when there are ungrateful people, you feel like not helping others also. और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया हो या आपको दुख पहुंचाया हो तो उनकी और जो मदद करने की इच्छा नहीं होती है। You have helped them, you have done your best, and they are now so ungrateful to you. You feel like now you just don't want to help anybody. You have nothing to do with anybody. क्योंकि ऐसा लगता है कि कब कोई आपके साथ अगर बुरा करता है या आपके जीवन में मुश्किल खड़ी करता है तो ऐसे लोगों की वजह से हम सोचते हैं कि आगे में हम किसी और की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जो बदले में वो हमसे बुरा ही बर्ताव करते हैं। ये मनुष्य का नैसर्गिक सोच होता है। But David is a good man. लेकिन हम देखते हैं दाऊद एक अच्छा पुरुष है And we must learn lessons from David. और दाऊद से हम काफी सीख ले सकते We हैं। must learn what he is showing kindness to Barzillai. हम देखते हैं यहाँ पर वो बारजिलाई से अच्छा व्यवहार कर रहा है अभी। You may read God's word, but if you don't understand it, it doesn't make any sense. और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी जो समझ जो पाना जरूरी होता है। And so it says in verse 31 that this Barzillai, he came and he went across the Jordan with the king. He was now with the king David. तो हम देखते हैं ये बारजिलाई जो है अब दाऊद के साथ जो है यरदन नदी को पार कर रहा है इस समय। So you need to understand that he is meeting the king and the king wants to show kindness to him. तो हम देखते हैं कि बारजिलाई फिर एक बार जो है उसके साथ जो है जो नदी को पार कर रहा है और राजा चाहता है अब बारजिलाई को जो है इनाम दे, वो अच्छी रीति से उसका व्यवहार करे। But his age
He's 80 years old. लेकिन इस समय में हम देखते हैं कि अब बारजिलाई 80 साल का हो गया है He's got the experience of life. और पूरा जीवन उसने जिया है। And it says that he had provided the king with supplies when he had stayed at Mahanaim. और इसलिए लिखा है कि जब वो महनियम में था तब उसने राजा को सारी उपलब्धियां दी थी, For he was a very rich man. क्योंकि बारजिलाई बहुत ही धनी व्यक्ति था, इसलिए वो दाऊद की मदद कर पाया हर रीति से जब वो महनियम में था। See, you see Luke 22 verse 28 onwards. लूका 22वें अध्याय में हम देखेंगे It says, 28वां वचन, But you are those who have continued with me in my trials. Jesus is speaking these words. यीशु यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन तुमने मेरे साथ जो है निरंतर मेरा साथ दिया है मुश्किल घड़ियों में, And he says, I bestow upon you a kingdom. Hallelujah. और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक राज्य सौंपता हूँ। That means they have stood with Jesus all this time in this trial, in this tension, in this, in every aspect of life. They tried their best to be with him, and now Jesus is saying, I bestow a kingdom. तो हम देखते हैं यहाँ पर भी जो है यीशु कह रहे हैं शिष्यों को कि मुश्किल घड़ियों में भी तुमने मेरा साथ दिया, हमेशा तुम मेरे साथ रहे हो, और इसीलिए परमेश्वर का राज्य जो है मैं तुम्हें देता हूँ। Even though the disciples had lacked in few things, but Jesus saw their intent, their motive, that they were with him. हालांकि शिष्यों ने भी कभी कभी जो है यीशु का साथ छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद यीशु उनको इनाम दे रहे हैं, क्योंकि यीशु उनका हृदय को जांच कर देख रहे हैं कि वो अपने सच्चे दिल से यीशु के साथ रहना चाहते हैं। He goes on to say, just as my father bestowed one upon me. Hallelujah. वो कहता है मैं राज्य आपके ऊपर रखता हूँ जैसे कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर रखा था, That you may eat and drink at my table in my kingdom. ताकि मेरे राज्य में तुम मेरे साथ खाओ और पी सको, And sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. और Hallelujah. सिंहासन पर विराजमान रहो ताकि तुम 12 जनजातियों के ऊपर न्याय कर सको। So you see that how Jesus is responding to those who are with him. तो हम देखते हैं यीशु भी यहाँ पर जो है उनके साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। If you see certain things in Luke, I want to show you something from Luke. But you are those who have continued with me. That was in Luke. 28वें वचन में अगर हम देखेंगे, परंतु तुम वही हो जो मेरे परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। Now, if you see in Matthew 25, अब हम जाएंगे जो मत्ती की पुस्तक में 25वां अध्याय। then the king will say to those on his right hand, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेंगे, Come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी को जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। Barzillai had helped David, हम देखते हैं कि बारजिलाई ने दाऊद की जो मदद की थी, and David is now showing kindness to Barzillai. और अब समय आया है कि दाऊद अपनी अच्छाई दिखा रहा है बारजिलाई के प्रति। As we are chosen and called by his name उसी प्रकार से जैसे हमको बुलाया गया है यीशु मसीह के नाम से, to serve and spread his gospel, ताकि हम उसके सुसमाचार को दूसरों से बांट सके। there is a time coming when the King of Kings and the Lord of Gods will say, Come, you blessed of my father. जैसे हम ये करते जाते हैं, तब एक दिन आएगा जब यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के सामने हमें स्वीकारेंगे और हमें आमंत्रण करेंगे जो है उसके राज्य में प्रवेश कर उसके आनंद में शामिल होने के। What beautiful words to hear, to inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. कितनी
जो है ये वचन है कि परमेश्वर ने धरती की नींव डालने से पहले जो राज्य तैयार किया है वो हमें वो दे देगा, हमें उसका भागीदार बनाएगा। कितनी खुशी की बात है। David and his men were hungry in that wilderness. हम देखते हैं कि दाऊद भी जो है भूखा प्यासा था निर्जन प्रदेश में, No proper place to sleep, और निर्जन प्रदेश में सोने के लिए भी खास जगह नहीं थी, no proper food. खाने के लिए भोजन नहीं था। And Jesus mentioning in 25 verse 35, for I was hungry and you gave me food. और फिर आगे लिखा गया है कि जब मैं भूखा था, प्यासा था, तुमने मुझे भोजन दिया और पीने के लिए पानी दिया। I was thirsty and you gave me a drink. जब मैं भूखा और प्यासा था, तुमने मुझे भोजन और पानी दिया। I was a stranger and you took me in. मैं एक बाहर वाला था, लेकिन तुमने मुझे शरण दिया। I was naked and you clothed me. मैं नग्न था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। I was sick and you visited me. मैं बीमार था और तुम मुझे मिलने आए। I was in prison and you came to me. मैं बंदी गृह में था, तुम मुझे मिलने आए थे। Then the righteous will answer him saying, फिर धर्मी लोग ऐसे पूछेंगे उनसे, Lord, when did we see you hungry and feed you? प्रभु मैंने आपको भूखा कब देखकर आपको खाना दिया था, Or thirsty and give you a drink? और आप कब प्यासे थे और हमने आपको पीने के लिए पानी दिया। When did we see you as a stranger and take you in? जब तुम बाहर वाले थे और हमने आपको अंदर जो है शरण दिया, ये हमने कब किया। When you were naked or when you were sick or when you were in prison that we came at your aid. जब आप नग्न थे या बीमार थे या बंदी गृह में थे, मैंने आपको कपड़े दिए, आपसे मिलने आए, ये सब हमने कब किया। And the king will answer and say to the righteous, तब राजा उत्तर में धर्मियों से कहेगा, Assuredly I say to you, सच में मैं तुमसे कहता हूँ, inasmuch as you did it to one of the least of my brothers, you have done it to me. ये सारी चीजें जो तुमने मेरे किसी भी दास के साथ किया है, तो तुमने असल में मेरे लिए किया है ऐसा करके। So you understood that Barzillai had helped David and his men with food, with clothing, with all the things, with the place to sleep in the wilderness. And now when the king is back on the throne, he wants to show kindness to him. तो हम देखते हैं कि बार्जिलाई ने जो अच्छाई दिखाई थी दाऊद के प्रति निर्जन प्रदेश में, उसने खुद से सारे अच्छी चीजें की थी दाऊद के लिए, उसकी सेना के लिए। अब हम देखते हैं जब दाऊद के मुश्किल के दिन खत्म हो गए और अब दाऊद सिंहासन पर है, तब अब वो बार्जिलाई की अच्छाई के बदले में उसके साथ अच्छा करना चाहता है। Whatever you sow, you will reap. और इसलिए जो भी हम बोते हैं इस दुनिया में, उसका जो कटनी भी हमको करना ही है। You help people, someone help is going to come from above somehow. अगर आपने किसी की मदद की है तो जो है स्वर्ग से तुम्हारे लिए मदद जरूर आएगी। You do good, good is coming. अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो आपके लिए अच्छा भी आएगा। You pray for people, when you are in need, there will be prayers, supernatural prayers coming for you. अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना किया है तो कोई ना कोई जो है अलौकिक रीति से आपके लिए प्रार्थना कर रहा होगा। People who serve God will never, ever, ever, ever be abandoned. क्योंकि जो लोग सच हृदय Hallelujah. से प्रभु की सेवा करते हैं, उनका इनाम कभी भी चूकता नहीं है। प्रभु उनको इनाम जरूर देता है उनकी हर सेवा के लिए। Barzillai was 80 years old. David could have said, forget, yeah, he's rich already. What does he want? But no, the king remembered his services. हम देखते हैं कि बार्जिलाई अब 80 साल का हो गया था और बहुत धनी भी था, तो चाहे तो दाऊद इस बात को अनदेखा कर सकते थे ये जानकर कि बार्जिलाई अच्छी स्थिति में है, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। उसने बार्जिलाई के साथ अच्छाई करने का प्रकट किया, जो है जताया कोशिश कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ अच्छे रहे। If a person like David, who is king, remembers Barzillai, how much more the King of Kings will remember you. तो अगर दाऊद धरती का राजा होकर
बारजिलाई की अच्छाई को भूला नहीं, तो हमारा यीशु जो राजाओं का राजा है वो हमारे हर अच्छाई को कैसे भूलेगा। In fact, the King of Kings is bestowing a kingdom. बल्कि यीशु ने कहा Hallelujah. है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, कि मैं अपने स्वर्गीय राज्य को आपको दे रहा हूँ। Once you understand the concept of the kingdom, you'll know the supply of the kingdom. और ये राज्य की बातें जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे उसकी उपलब्धि को भी जो पाने के लिए आसान हो जाए। You'll understand the protection that comes from the kingdom. क्योंकि राज्य की जो सुरक्षा होती है वो भी उपलब्ध कैसे करना हमें आ जाएगा। You will understand the favor of the kingdom. परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके राज्य द्वारा कैसे मिलती You है will हमें समझेगा। Understand the power of the kingdom. और राज्य का सामर्थ्य भी हम देखेंगे। Many people are not enjoying the kingdom because they do not know how to receive from the kingdom. बहुत लोग राज्य की आशीषों को इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि राज्य की चीजें कैसे चलती है ये उनको समझ में नहीं आता। Barzillai, he was rich, but he understood the king. He understood that he was there. He understood, he never thought about getting things in return, but he knew that it was time for him to give his services. बारजिलाई ने जो अच्छाई की थी उसके बदले में उसने कोई अपेक्षा नहीं रखा था राजा से। हालांकि वो 80 साल का भी हो गया था, फिर भी वो राजा की सेवा करने की भावना रख रहा था। इसलिए उसने कहा कि अभी भी जो 80 साल हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी यरदन तक तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। And King David is saying, you come with me now. Be in Jerusalem. और इसलिए राजा उससे कहता है, उससे खुश होकर कहता है कि तुम मेरे साथ फिर यरूशलेम तक क्यों नहीं आते। I will provide for you everything. You will get protection. You will get everything. Whatever you need. You're old now. You come. जैसे राजा बारजिलाई से कह रहा है कि यरदन तक ही नहीं लेकिन जो है यरूशलेम तक तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जो भी चीजें हैं तुम्हारी मैं तुम्हें उपलब्ध करूंगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। But what is Barzillai saying to the king back? लेकिन बारजिलाई ने राजा को इसमें क्या जवाब दिया? How long have I to live? He felt that 80 years where he lived a long life. उसने राजा से कहा कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन जिया है। तो ऐसे उसने जवाब दिया। He was satisfied. It showed that he was content. मतलब कि वो जता रहा है कि मैं अपने पूरे जीवन में संतुष्टि का जीवन मैंने जिया है। And the important thing that he wasn't, his services were accepted by King David. और उसको ये भी संतुष्टि था कि उसने राजा की काफी सेवा भी की थी। And his services were recognized later by King David. और राजा दाऊद ने इस बात का जो है एहसास भी किया कि जो है बारजिलाई ने राजा के लिए इतना सब कुछ किया है। As Apostle Paul says, I have fought the good fight, I have finished the race. उसी प्रकार से जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को दौड़ा है और मैंने अपने स्पर्धा को खत्म किया है। Barzillai came to understand that this was the very end of his life now. बारजिलाई को ये समझ था कि मैं अब 80 साल होने के नाते अपने जीवन के अंत तक आ पहुंचा हूँ ऑलरेडी। So he says, how long do I live that I should go up with the king to Jerusalem? और इसलिए बारजिलाई ने राजा से कहा, अब और मैं कितना जीऊंगा कि मैं यरूशलेम तक आपके पास आ जाऊं। Verse 35 says, I am today 80 years old. Can I discern between good and bad? और इसलिए वो कहता है कि 80 साल का होने की वजह से मुझे अच्छे और बुरे के बीच का महसूस होता है। Can your servant taste what I eat or what I drink? क्या आपका दास चख सकता है कि क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं पी रहा हूँ? Can I hear any longer the voice of singing men and singing women? और गीत गाते पुरुष और स्त्रियों की आवाज भी क्या मैं सुन सकता हूँ? Why then should your servant be a further burden to my lord the king? तो फिर आपका ये दास आपके ऊपर बोझ क्यों बने? Your servant will go a little way across the journey with the king. दास कहता है कि मैं यरदन नदी को पार करने तक
मेरे राजा के साथ जाऊंगा। Now he makes a very important statement here. और फिर वो एक महत्वपूर्ण बात कहता है। Why should the king repay me with such a reward? वो कहता है कि मेरा राजा मुझे इस प्रकार से इनाम देने की जरूरत क्या है? In the wilderness, I only gave you food. मतलब वो कह रहा है कि निर्जन प्रदेश में तो मैंने सिर्फ आपको भोजन दिया, I only provided beds for you and your men. मैंने सिर्फ आपके और आपके सैनिकों के लिए जो बिस्तरों की उपलब्धि की थी। But now you are asking me and going to provide for all of my life everything. लेकिन अब आप कह रहे हो कि आप मेरे अभी जो भी दिन जो बाकी है, आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, मुझे उत्तम से उत्तम चीजें देना चाहते हैं इसके बदले में। Luke 6:38 says, "Give and it will be given to you." लूका 6 में लिखा गया है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा, Good measure, pressed down, shaken together, अच्छे माप में हिला हिलाकर दबा दबाकर, and running over will be put into your bosom. Hallelujah, और उमड़ता hallelujah. हुआ आशीष तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। For with the same measure that you use it, it will be measured back to you. क्योंकि जिस माप से तुमने दिया है उसी माप से तुम्हें दिया जाएगा। So you understand, if you are receiving from God Most High, is because you had been faithful some time back. तो इसीलिए अगर आप ये समझते हो कि परमेश्वर आपको बहुतायता से आशीष दे रहा है, ये इसलिए क्योंकि आपने कभी ना कभी सेवा की भावना रखी थी। See, this scripture is a very big scripture in understanding. ये वचन में बहुत सारी चीजें शामिल है जिसकी समझ हम ले सकते हैं। Many people just take the scripture for granted. बहुत लोग इस वचन को बस यूं ही जो है इसको पढ़ते हैं। They think that giving is not important, giving is very important. कुछ लोग सोचते हैं कि देना यानी कि साधारण होता है, उसमें खास क्या है। You know, when you come to the king to honor him, you have to bring an offering. हम जानते हैं जब हम राजा के पास जाते हैं तो भेंट लेकर जाते हैं। So we need to understand, here he had offered his services to the king and now the king was blessing him. यहाँ पर हम देखते हैं बारजिलाई ने जो है अपनी सेवा के द्वारा सारी चीजों की उपलब्धि की राजा दाऊद के लिए उस समय निर्जन प्रदेश में, और अब उसकी वजह से जो है दाऊद उसको इनाम देना चाहता है। So verse 37 says, "Please let your servant turn back." और इसलिए आगे वो कहता है कि अब आपका दास वापस चला जाए अपने घर, इसकी अनुमति दो राजा। Barzillai is telling the king, "Soon my life will be over." बारजिलाई राजा से कह रहा है कि जल्दी ही मेरा जीवन समाप्त होगा And I should be buried near my father and my mother. और मेरी इच्छा है कि मेरा कब्र मेरे माता पिता के बगल में हो। But I have one request. लेकिन मेरी एक इच्छा है राजा। He was 80 years old, but there was something that he had desired. वो तो खुद 80 साल का हो गया था, लेकिन उसके हृदय में एक इच्छा जरूर थी। But here is your servant Chimham. उसने कहा कि तुम्हारा एक दास है चिम्हम करके। Who is Chimham? अब ये चिम्हम कौन है? Chimham was his son. चिम्हम जो है उसका बारजिलाई का जो बेटा था। If Barzillai thought that he was a servant of the king, automatically his sons also would become servants of the king. बारजिलाई ने ये सोच रखा कि मैं जैसे मेरे दाऊद राजा का दास मैं हूँ, वैसे ही मेरा बेटा चिम्हम भी मेरे दाऊद राजा का दास जैसा ही है। That's why whatever you're calling, whether you're a pastor, whether you're a musician, whether you are a teacher, whether you're an evangelist, you are a servant of the king. और इसीलिए आप चाहे जिस भी प्रकार की बुलाहट में चल रहे हो, चाहे आप पासवान हो या आप कोई जो है सुसमाचार बांटने वाले व्यक्ति हो या कोई भी प्रकार का सेवा आप कर रहे हो, आप परमेश्वर के दास हो। Those who humble themselves will be exalted, and those who exalt themselves will be humbled. और इसलिए वचन कहता है अगर आप खुद को उठाओगे तो आपको नम्र किया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को नम्र बनाओगे तो परमेश्वर आपको उठाते हैं। If God has called you, God has blessed you, He will provide for you and He will protect you all the days of your life.
और अगर जो है आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है उसकी सेवा में, तो आपका जीवन भर परमेश्वर आपकी सुरक्षा और उपलब्धि करता रहेगा। So even though he was 80 years of old, King David never forgot. That means God remembers you until the last breath of your life. बर्जिलाई जो 80 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी दाऊद उसे भूला नहीं, उसकी अच्छाई को भूला नहीं। और इसीलिए जब जो भी सेवा हम करते हैं, हमारे जीवन के अंत तक भी, इस धरती के जीवन के अंत तक भी परमेश्वर उसे याद रखते हैं। If you understand, in 1 Kings 2:7 it says, David is saying to Solomon, show kindness to the sons of Barzillai. यहाँ पर दाऊद सुलेमान से कह रहा है, एक राजा 2 अध्याय 7वें वचन में, कि बारजिलाई के प्रति तुम अच्छाई दिखाना। That means when you are a giver and you are in service to the king, your generation will also be blessed. यहाँ पर जैसे लिखा है कि दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहता है कि बारजिलाई जो मेरे प्रति अच्छा रहा था, उनके बेटों पर तू अपनी कृपा दृष्टि दिखा। मतलब कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारे जो पीढ़ी है उनके ऊपर भी प्रभु की कृपा आ जाती है। Not only that, and let them be among those who eat at your table. और दाऊद सुलेमान से ये भी कहता है कि उनको आपके मेज के साथ भोजन खाने दो। Because if you see, it says in chapter 2 of Luke 29 onwards, आगे लूका की पुस्तक में हम देखेंगे, it says, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. प्रभु आप अपने दास को शांति से जाने की अनुमति दे रहे हो आपके वचन के द्वारा। Barzillai had a request, let me go, but you bless my servant Chimham, who is my son, who are descendants of me. और इसलिए हम देखते हैं बारजिलाई ने दाऊद से कहा कि मैं तो 80 साल का हो गया हूँ, जीवन के अंत तक आ गया हूँ, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता हूँ इसके और ज्यादा जो है, लेकिन मेरा बेटा जो है, मेरा दास चिन्मय जो है, जो आपका दास है, उसको आप ले जा सकते हो। That's why in Luke 2:30 says, for my eyes have seen your salvation. Hallelujah. आगे लिखा गया है कि मेरे आंखों ने तुम्हारा उद्धार तो देख लिया है, which you have prepared before the face of all peoples. जो तुमने तैयार किया है सारे लोगों के मुख के सामने। He's telling, Barzillai is telling King David, I have recognized you as king. बारजिलाई दाऊद से कह रहा है कि मैंने तुम्हारी राज्यता को समझा है। I have recognized that God has chosen you to rule over Israel. मैंने इस बात को समझा है कि परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें इज़राइल के ऊपर राज्य करने के लिए चुना है। That God has called you to be savior at this point of time. कि परमेश्वर तुम्हें इस समय में चुना है राज्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। And so he was satisfied. और इसलिए वो संतुष्ट था ये सब बातों को। I have seen all these good things, now let me remain and die in peace. और इसलिए वो कहता है मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है, अब मैं शांति से जीना चाहता हूँ। So many a times we must know that we have this understanding that our eyes have seen your salvation, O God. और इसलिए ये समझ हमें आनी चाहिए कि परमेश्वर आपने अब तक मेरा ख्याल रखा है प्रभु, ये समझ और एहसास आना जरूरी है। Let us understand what Barzillai is saying. तो बारजिलाई जो कह रहा है ये हमें समझना है। And the king answered. और फिर राजा ने जवाब दिया। What did he say? Chimham shall cross over with me. राजा ने कहा ठीक है, चिम्हम मेरे साथ आगे आ सकता है। He's telling Barzillai, your request has been accepted. मतलब कि राजा दाऊद ने बारजिलाई से कहा ठीक है, तुमने जो मांगा है कि चिन्मय मेरे साथ आए यरूशलेम तक, तो मैं ऐसा करूंगा। And I will do for him what seems good for you. और Hallelujah. तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। Parents, people, as you pray, your prayers are not in wasted. As long as you give and serve in the kingdom of our Lord Jesus Christ, God will do everything as you request.
और इसलिए जैसे जैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, खास करके माता पिता और सारे लोग, हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसका आदर करते हैं, अपनी सेवा की भावना से जो भी सेवा करते हैं, तो जो है परमेश्वर बदले में हमारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि जरूर रखते हैं और सारी चीजों को की देख रेख भी वही करता है हमारे प्रति। Prayer is good, fasting is good, but there is also giving and service in the kingdom. प्रार्थना करना, उपवास करना, ये बहुत अच्छा है करना, लेकिन साथ साथ जो है देने का भावना भी रखना बहुत जरूरी होता है। And the king is saying, now whatever you request of me, I will do for you. It is done. Amen. और इसलिए राजा ने बारजिलाई से कहा कि जो तुमने मांगा है वो मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे लिए करूंगा। That means we must understand that God has a plan. मतलब कि हमें समझना है कि परमेश्वर एक योजना बनाता है And in that plan, every promise of God is yes and amen in Christ Jesus. और उस योजना में हर चीज जो है सकारात्मक और हमारे हित के लिए होता है, यीशु मसीह के द्वारा अच्छाई। See, we must understand, if we go back, there was a man at the temple named Simeon. थोड़ा अगर हम देखेंगे एक और कहानी की तरफ, सिमियन के बारे में, It is there right in Luke chapter 2. लूका दूसरे अध्याय में इसके बारे में जिक्र है। And this man was a righteous and a devout man. और सिमियन का ये नाम बहुत धर्मी था And the Bible says that he was waiting for the one who would comfort Israel. And the Holy Spirit was upon him. और वो इंतजार कर रहा था कि इज़राइल के ऊपर राज्य करने वाला और जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होकर प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन का इंतजार कर। And it was revealed to him that he will not die until he met the Lord's Messiah. और उसको ये प्रकटन दिया गया था कि जब तक वो यीशु मसीह का यानी कि जो है उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से न देख ले, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। And when Joseph and Mary brought Jesus into the temple, he was led by the Spirit to come there. It was Simeon. और हम ये भी जानते हैं कि जब मरियम और यूसुफ ने जो है यीशु को जो मंदिर में लेकर आए थे, उसी समय पवित्र आत्मा ने सिमियन को आग्रह किया था कि वो भी उसी समय मंदिर में जाए ताकि वो उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देख सके। And he took the infant in his arms and praised God. और बाल यीशु को अपने हाथ में लेकर उसे देखकर उसने परमेश्वर को स्तुति दिया। And he said, Master, now you are letting your servant depart in peace. और Hallelujah. उसने कहा कि परमेश्वर अब आपका दास शांति से इस धरती को छोड़ सकता है। That's why the statement has come, for my eyes have seen your salvation. और इसलिए आगे वो कहता है क्योंकि मेरे आंखों ने उद्धार को देख लिया। Because he's seen salvation right before his eyes. क्योंकि उसने मानव जाति का उद्धार अपने आंखों से देखा। So we come back to the story between Barzillai and King David. तो वापस आएंगे दाऊद और बारजिलाई की कहानी में। And we see, and the king answered, Chimham shall cross over with me. तो राजा ने स्वीकार किया बारजिलाई के इच्छा को और उसने कहा ठीक है, तो मैं चिन्मय को अपने साथ लेकर जाऊंगा। And all the people went over the Jordan. और सारे लोग यरदन नदी के उस पार वह गए। This story is coming to a climax. अब यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी का अंत आ रहा है। And Barzillai must be very happy. Oh, now my son's future, everything will be provided for them. They will be helped, and all these things will be done for my children. I can now die in peace. Barzillai must have thought that. तो जब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बेटे को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, इस बात को सुनकर बारजिलाई बहुत संतुष्ट हुआ होगा कि ठीक है, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है, राजा मेरे बेटे को लेकर जा रहे हैं, अब उसका भविष्य सुरक्षित है राजा के साथ, अब मैं वापस अपने घर जाकर आराम से अपना बाकी का दिन जीकर निकाल सकता हूँ, ऐसे उसने सोचा होगा संतुष्टि से। But the best is yet to come.
लेकिन ये सब चीजों से भी ज्यादा और उत्तम आ रहा है। And when the king had crossed over, लिखा गया है जब राजा यरदन नदी को पार किया, the king kissed Barzillai and blessed him, and he returned to his own place. Hallelujah. राजा ने Jesus. बारजिलाई से अलग होने से पहले, ये यरदन नदी को जो पार करने के बाद बारजिलाई वापस आने वाला था अपने घर, ऐसा करने से पहले राजा ने बारजिलाई को चूम कर उसको आशीषित करके फिर उसको वापस अपने घर भेजा। You see through scriptures that you kiss the king, but here the king kisses Barzillai. हम देखते हैं पूरे जो वचन में काफी बार लिखा है कि हम राजा को चूमते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि राजा ने बारजिलाई को चूमकर उसे आशीषित किया। And blessed him. We know that the king blesses, but the kiss from the king is very important. It's very touching. यहाँ पर जो है, जैसे हम देखते हैं कि राजा ने उसे आशीषित किया, ये सुनना सामान्य है, लेकिन राजा ने उसको चूम कर फिर उसको आशीष दिया, ये अलग है, बहुत ही करीबी जैसा रिश्ता दिखा रहा है। That means the kiss from the king is very important. इसका मतलब कि राजा की ओर से चुंबन पाना मतलब कितना महत्वपूर्ण बात है। And then it says that Barzillai returned to his home. और फिर लिखा है कि बारजिलाई उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है। What a beautiful scripture this is. कितना सुंदर ये जो वचन है। If you see Matthew 25 verse 21 onwards, मत्ती 25 में अब हम जाएंगे। the Lord said to him, प्रभु ने उससे कहा, well done, good and faithful servant. तुमने अच्छा किया है मेरे विश्वसनीय दास। You were faithful over a few things. कुछ चीजों के ऊपर तुम विश्वसनीय रहे, I will make you ruler of many things. और इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों के ऊपर शासन दूंगा। Enter into the joy of your Lord. तुम्हारे Hallelujah. प्रभु के आनंद में शामिल हो जाओ। You know, hallelujah, we need to understand, let him kiss me with the kisses of his mouth. और इसलिए जैसे वचन में लिखा गया है कि वो मुझे अपने मुंह के चूमनों से चूमे। The Shulamite woman and the beloved. शुलमाई स्त्री और उसके प्रेमी के बीच की बात, Israel and Jehovah. यानी कि यहोवा और प्रभु के बीच के प्रेम जैसे बात, The bride and the bridegroom. जैसे दुल्हन और दूल्हे के बीच के प्रेम की बात। We as individual and Jesus as Lord. हम परमेश्वर की कलीसिया और हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच के प्रेम की बात जैसा। In this portion of scripture we see in Barzillai's generosity. यहाँ पर हम देखते हैं बारजिलाई की ने जो अच्छाई किया था उसके बारे में हमने देखा, We see that it was recognized by the king. और हमने देखा कि उसकी अच्छाई को राजा ने याद किया। We see that there was an invitation of the king that he brought forth Barzillai to him. और हम देखते हैं इस उसकी अच्छाई की वजह से दाऊद राजा ने बारजिलाई को अपने करीब रखा। But important also we see that Barzillai in this lesson he did not give to receive. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बारजिलाई ने जो दाऊद के लिए किया था उसके मुश्किल दिनों में, दाऊद के मुश्किल दिनों में उसने इस इच्छा से उसकी मदद नहीं की कि बदले में दाऊद उसे कुछ दे, क्योंकि उस समय दाऊद के पास कुछ नहीं था। But we learn a lesson of gratefulness from King David, how he called and he remembered what Barzillai had done, help to him. लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दाऊद नहीं भूला कि उसके मुश्किल दिनों में बारजिलाई ने किस प्रकार से उसकी मदद की थी और उसके लिए क्या क्या किया था। राजा होने के बाद भी उसने याद किया बारजिलाई को और उसके अच्छाईपन को। We understand the request of Barzillai for his generation. और फिर हम इस बात को समझते हैं कि बारजिलाई ने उसके पीढ़ी के लिए आशीष किस प्रकार से मांगी। In this portion of scripture we also see that the king has kept his promise. और इस वचन में हमने ये भी देखा कि राजा ने अपने वायदे को पूरा भी किया। That he also told his son King Solomon to look after Barzillai's sons. और इसलिए हम देखते हैं वो दूसरे वचन में लिखा गया था कि दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से भी कहा कि बारजिलाई के
पुत्रों का ख्याल रखना, उनसे अच्छी रीति से पेश आना। And the last thing is the kiss of the king, so important. और आखिर में राजा की ओर से चुम्बन पाना कितना महत्वपूर्ण। How good it will be there when we hear the voice, "Well done, my faithful and beloved servant." कितना अच्छा होगा वो दिन जब हम अपने राजा के मुंह से सुनेंगे हमारे लिए कि हमने अच्छा किया। Dear saints of God, remember the story about Barzillai. ये बारज़िलाई की ये कहानी हमें हमेशा याद करना है। Some of you must have read it. आप में से कुछ लोगों ने उसके बारे में जो पढ़ा होगा, But today we need to gain understanding. लेकिन उसकी अब समझ पाना भी अच्छा है। Today there is a King of Kings and a Lord of Lords who's watching over things, what we do on planet Earth. हमारा एक राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह, जिसकी निगाहें हम सबके ऊपर है और वो देख रहा है हम जो भी करते हैं। The kingdom has been bestowed upon the citizens. और जैसे जैसे हम सेवा की भावना रखते हैं, अच्छाई करते जाते हैं, तो उसकी भलाई उसके दासों के ऊपर हमेशा होता है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे अभी। Father God, we come before you. हे पिता, हम आपके सामने आते हैं, We bless your holy name. आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। We give you glory, Lord. सारी महिमा हम आपको देते हैं। Father God, as King David remembered Barzillai, और प्रभु जैसे दाऊद ने बारज़िलाई को याद किया, we know, Lord, you will never forget your children, your people. हम जानते हैं आप अपने लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। You have not forgotten Israel up to today. आपने इज़राइल को नहीं भूला है अभी तक। And we who have been chosen in Christ Jesus, we know that you will never forget. और हम जो यीशु मसीह में चुने हुए हैं, आप हमें भी कभी नहीं भूलेंगे। Thank you, Father, that you have called us into your kingdom of your divine light. धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपनी रोशनी में आने के लिए बुलाया है। And today, Lord, we just want to look unto you. और आज हम अपनी दृष्टि आपके ऊपर लगाते For हैं, you are the author and the finisher of our faith. क्योंकि हमारे विश्वास की शुरुआत और अंत आप ही है। Help us to understand how Barzillai understood चीजों को समझने की ताकत हमें दो बारज़िलाई की तरह प्रभु, that we must be givers and we must show service in the kingdom of God. कि हमें देने वाले लोग होने चाहिए और राज्य में सेवा करने की भावना हमें रखना है। Father, we thank you, Lord, that how you remembered Barzillai, you have remembered us. और जैसे दाऊद ने बारज़िलाई को याद किया, वैसे ही आप हमें याद करते हैं। Whatever be our age, Lord, we know, Lord, that you are the God of love. और चाहे आज हमारी उम्र जो भी हो इस धरती पर, लेकिन आपके मन में हमारी याद है। May us we always be grateful unto you, Lord. और इसलिए हमेशा प्रभु हम आपके प्रति आदरणीय रहे, धन्यवाद दिल से, So that your favor would rest upon our lives. ताकि आपकी कृपा दृष्टि हमेशा के लिए हमारे ऊपर हो। Without you, we can do nothing, Lord. क्योंकि तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं है प्रभु। Lord, and today, Lord, as we are in your presence, और आज जैसे हम आपकी उपस्थिति में है प्रभु, forgive us, Lord, if we have hurt you, हमें क्षमा करो अगर हमने आपको चोट पहुंचाई है, if we have grieved your Holy Spirit, अगर हमें पवित्र आत्मा को दुखित किया है, if we have grieved someone outside, Lord. या हमने किसी दूसरे मनुष्य को चोट पहुंचाई है। Lord, we need your forgiveness. प्रभु हमें आपसे क्षमा चाहिए प्रभु, We once again come back to you, Lord. और हम वापस आपके पास आना चाहते We हैं। seek you, Lord. हम आपको खोजते हैं इस समय। We know, Lord, that you will always bless us and our generation. हम जानते हैं आप हमें और हमारी पीढ़ी को आशीषित करोगे, You are the God who remembers us, Lord. क्योंकि आप अपने लोगों को का ध्यान रखते हो प्रभु। We surrender once again our lives to you. हम अपने जीवन को आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु। May our lives show forth your love and your goodness. हमारा जीवन आपका प्रेम और आपकी भलाई को दर्शाए। We pray a healing, Lord, through your word in our lives. आपके वचन के द्वारा चंगाई आ जाए हर एक के जीवन में प्रभु। Lord, as we submit to you, I speak your healing, Lord, over all those who are hearing me for the first time. और जो भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी ओर से आशीषें हर एक के ऊपर आए, खास करके वो जो पहली बार सुन रहे हैं। Search God and reach out to him. His name is Jesus.
खोजो परमेश्वर को, यीशु मसीह को खोजो और आप उसका अनुभव करोगे। The one who died on the cross, यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपना जीवन त्याग दिया, the one who shed his precious blood, और यीशु ने अपना लहू बहाया, the one who had stripes on his body, यीशु ने अपने शरीर पर कोड़े खाए, that by his stripes we are today healed. इसलिए ताकि उसके कोड़े खाने से हम पूरी रीति से चंगे हो I सके। speak healing over your life. और यही चंगाई हम आपके लिए घोषित करते हैं। May God's word heal and touch you and bless you. परमेश्वर का वचन आपको चंगा कर दे और आपको आशीषित करे, May you see signs, wonders and miracles in your own lives. और आप अपने खुद के जीवन में चमत्कार देखो और छुटकारे देखो। May the goodness of God be over you. प्रभु की भलाई तुम्हारे जीवन पर आए। Father God, we just thank you once again और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता that you have preserved us and kept us. कि आपने हमें सुरक्षित रखा। We give you all glory. हम आपको सारी महिमा देते We हैं give you all the honor. और सारा आदर हम करते हैं And we give you all the praise. और सारी स्तुति आपको देते हैं In Jesus' matchless name. यीशु मसीह के नाम से पिता। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे, Be fruitful. फलदायी बनो, Multiply. आप बहुगुना हो जाओ, Increase. बढ़ोतरी हो तुम्हारी, Get into the kingdom for cultivation. और परमेश्वर के राज्य में खेती करने में शामिल हो जाओ। May you speak God's word and people be healed and blessed. परमेश्वर के शब्द को अपने मुख से कहकर आशीष को पाओ, May the fragrance of the love of God come out of your being. और प्रभु का सुगंध तुम्हारे जीवन से आ जाए। Shalom. शालोम। Until we meet again. और हम फिर से मिलेंगे। Amen.